अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। Assalamu alaikum everyone and good evening. Welcome you all to SDG 7, SDG 10, sorry. This is Memuna Yunus and today our speaker is Ma'am Anna Zafar. Miss Anna Zafar is a committed advocate and trainer specializing in Sustainable Development Goal 10, focused on reducing inequality within and between countries. With a strong academic foundation in defense and strategic studies, Ms. Anna applies her deep understanding of global political dynamics to tackle inequalities at both local and international levels. Her dedication to SDGs 10 is evident through her extensive experience. At the Sustainable Development Policy Institute, she played a pivotal role in documenting and reporting an annual SDG conferences, refining her ability to effectively communicate complex issues related to inequality. Ms. Anna's leadership in project literacy at the Pakistan Red Crescent underscores her grassroots commitment to eradicating inequality in society. Additionally, her fundraising efforts with the Pakistan Islamic Trust further illustrate her passion for advancing SDGs 10. Welcome, ma'am, and now the screen is all yours. Thank you so much. I'll share my screen with you guys. Wait a minute. Okay, you will let me know, okay, if my screen is visible or not. Yes, ma'am, your screen is visible. Okay. I'm going to open my PowerPoint presentation. वो भी visible हो तो please मुझे बताइएगा. Okay, ma'am. Okay, is it visible? Yes, ma'am, आपकी screen तो visible है. ठीक है, thank you. Okay, assalamu alaikum guys. Today we are here to talk about Sustainable Development Goal number 10. My introduction, you guys know me. अभी introduction हो चुका है. So I'll jump straight into the session. Sustainable Development Goal number 10 है क्या? It's about reducing inequalities within and among countries. ठीक है. अब हम इस टॉपिक से या इस लाइन से ना दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं. ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड दूसरा है विद इन एंड अमंग कंट्री. फॉर योर ईज मैंने कीवर्ड्स को जो है हाईलाइट कर दिया रेड में. सो इनइक्वालिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनइक्वालिटी. एंड देन सेकेंडली, ये जो एसडीजी है इट विल डील ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बोथ. ठीक है, तो इट इज अ होलिस्टिक गोल. सो सबसे पहले आई विल आस्क यू गाइस के व्हाट डू यू थिंक के इनइक्वालिटी होती क्या है. बिकॉज इनइक्वालिटी एक बहुत जो है क्या कहते हैं, बहुत वास्ट गोल है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है. सो आई विल वांट यू गाइस टू टेल मी. सो वेट अ मिनट, आई थिंक मेरा
मेरी जो स्क्रीन है वो यूएन की वो वेबसाइट शो हो रही है, नॉट द प्रेजेंटेशन आई गेस. एम आई राइट? यस, ये कोई डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है. Right. Let me see again. Wait a minute. And then I will want you guys to answer. Either open your mics or write in the chat box. Okay, what do you think inequality is? Okay, wait a minute. I'm gonna see के slides open हो जाए यहाँ पर screen पे. If it is visible, let me know. It's a presentation. I think it's not visible. Okay. मैं अच्छा चले मैं फिर इसके बगैर ही दे देती हूँ. ओके, काजिम ने बोला है inequality is the uneven distribution of resources. Wait, unequal distribution of resources and privileges among individuals or groups in society. Okay, Kazim, you're right. Sorry, Kazima, you're right. Okay, or if anybody wants to speak up, please raise your hand. जी बुशरा, please. मैम, अगर बड़े सिंपल अल्फाज में सिर्फ इनइक्वालिटी को देखा जाए तो मैं 3 वर्ड्स में बताऊंगी. नॉट फॉर ऑल. कोई भी चीज है, Yes, you're right. वो नॉट फॉर ऑल अगर हो तो उसमें अगर उसमें किसी को फायदा हो रहा है और वो सबके लिए नहीं है, सो दैट्स इनइक्वालिटी. Yes, you're right. Okay, anybody else? If somebody else wants to contribute, please speak up. Okay, so yes, both of the persons जिन्होंने अभी contribute किया, they're right. Not for all, basically. You're right. Has somebody raised their hand? Okay. So basically inequality को मैं 3 points में हुमा ने बोला है the state of not being equal, especially in status rights and opportunities. Yes, Huma, you're right. Okay, so basically, so yes, basically you all of you are right. Inequality को, yes, I know my slides are still invisible. I'm trying my best to go visible हो जाए, but I don't think they're gonna be visible. Let me try again. Okay. Wait a minute. Okay, I guess अब share हो गई हैं. Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो मैंने इनइक्वालिटी को ना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, एक तो इनकम इनइक्वालिटी है जिससे हम सब वाकिफ हैं. ठीक है, कि डिफरेंस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है ना वो एक सर्टन तबके के हाथों में हो जाए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. एक हमारा हमारा एक एलिट्स का तबका है जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ है. ठीक है, जबकि जो आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनके पास उनकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है इट इज़ वेरी बैड. सो दैट इज इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सेकेंड इज सोशल इनइक्वालिटी, जैसे अभी यू गाइस हैव मेंशन्ड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस. ठीक है, सो बेसिकली इसमें वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं, सोशल सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एवरीथिंग. इन सब सर्विसेज का जब अनइक्वल एक्सेस हो, ठीक है, यानी ये जो है ना इनके दरमियान मतलब जब ऐसी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करे तो दैट इनइक्वालिटी. यस विश्वा प्लीज. मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आपका ना कैमरा ऑन है, आई थिंक बाय मिस्टेक. नहीं, आई थिंक आई ओपन माय कैमरा. ओके, थैंक यू. It's okay. Okay, so basically income inequality then social inequality के जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं,
या जितने भी अदर सोशल सर्विसेज हैं उनका अनइक्वल एक्सेस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे दो पार्ट्स के हमारे रूरल एरियाज या इन अर्बन एरियाज है। रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बहुत बहुत जो है ना हम देखते हैं कि बुरी है, कि डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल। सिमिलरली हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो सर्विसेज हैं या एम्प्लॉयमेंट जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के जो जराए हैं वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। देन पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देखते हैं। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी सिंपल ये होती है कि लेट सपोज एक एथनिसिटी है स्पेसिफिक, या एक स्पेसिफिक तबका है आपकी कंट्री का जिसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे पॉलिटिकल प्रोसेस में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में यू गिव रिप्रेजेंटेशन टू एवरीबडी। ठीक है, आप रिजर्व भी करते हैं सीट्स फॉर विमेन, औरतों के लिए भी रिजर्व करते हैं आप सीट्स। इसी तरह हर एथनिसिटी की, हर प्रोविंस की, हर स्टेट की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविंस की, स्पेसिफिक स्टेट की, स्पेसिफिक एथनिसिटी की, स्पेसिफिक जेंडर की रिप्रेजेंटेशन ना हो या फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना हो, दैट इज पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राइट? ओके, इस सब से डील करने के लिए यूएन ने, इन सारी इनइक्वालिटीज से डील करने के लिए यूएन ने हमें कुछ टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, पहला टारगेट है इनकम ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से मैं जो है ना आपको दिखाऊंगी कि पहला है इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए यूएन ने क्या किया। यूएन के जितने भी गोल्स हैं ना, ये 2030 तक उन्होंने इसका जो है ना वो रखा है, थ्रेशोल्ड रखा है कि 2030 तक हमने ये टारगेट अचीव करना है। सो 2030 तक उन्होंने बोला है कि हमने इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है। किस तरीके से? कि हम इनकम ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, जो 40% पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी बॉटम 40% पॉपुलेशन की। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन लाएंगे, यानी वही बात के सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, या जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगेन वही है कि एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ की जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए हर किसी को। दूसरा, अडॉप्ट फिजिकल एंड सोशल पॉलिसीज दैट प्रमोट इक्वालिटी। बेसिकली ये कि वो गवर्नमेंट्स को अर्ज कर रहे हैं कि उनका काम ये है कि वो अच्छी फिजिकल पॉलिसी बनाए, वो अच्छी सोशल पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसीज बनाए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रमोट हो, जिसकी वजह से सोशल प्रोटेक्शन हो लोगों की, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी इरेडिकेट हो। फिर अगला गोल उनका यही है कि इम्प्रूव रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये वही वाली चीज़ है कि हम देखते हैं कि जैसे FATF टाइप काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो उनका पर्पज़ ये होता है कि जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं या फ्लॉज हैं, जैसे करप्शन हो गई, उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी रीज़न है फॉर many countries जिसकी वजह से आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। देन है enhanced representation for developing countries and financial institutions। इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगी। देन है responsible and well managed migration policies। वही बात के माइग्रेशन के लिए आप सही पॉलिसीज बनाएं। ठीक है, जो माइग्रेंट्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं उनके लिए पॉलिसीज आप प्रॉपर बनाएं। फिर है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। के डेवलपिंग कंट्रीज में भी अगेन ये इंटरनेशनल लेवल पे आता है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट इन लीज डेवलप कंट्रीज, और ये भी इंटरनेशनल लेवल पर, और रेमिटेंसेस वाली बात भी मैं बाद में करूंगी। सो बेसिकली इनकम उन्होंने कह दिया कि आप इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करो, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बता दी ताकि आप इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को कैटर कर सको। ठीक है, अब अगर हम देखें इनइक्वालिटीज़ और नेशनल लेवल, ठीक है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने जहन में ही सोचें कि पाकिस्तान में क्या इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पैसा है, जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, एंड द मेजोरिटी पॉपुलेशन
जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आती जा रही है. सो दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज में भी खास तौर पे ये बहुत ज्यादा ना अपेरेंट है ये इस किस्म की इनइक्वालिटी. ठीक है, लेट सपोज आपने एक फनल देखा है. ठीक है, फनल में से क्या होता है कि फनल में से आप ऊपर से पानी पोर करते हो, ज्यादा डालते हो, लेकिन उसका जो नीचे की टिप होती है वो पतली होती है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आता है नीचे. ठीक है, दैट इज हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स, दैट इज हाउ द वर्ल्ड एग्जिस्ट. ठीक है, ऊपर के पास ज्यादा जाता है एंड नीचे के पास आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीज आती है. और अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि उस फनल का बीच वाला पार्ट लेट सपोज टूट गया, तब वो पानी नीचे नहीं आ पा रहा. तो दैट इज हाउ पाकिस्तान की इकोनॉमी इज राइट नाउ, कि इट इज अ वैक्यूम इकोनॉमी राइट नाउ, कि वो पैसे नीचे नहीं आ रहा, इट्स गोइंग, इट्स एक्यूमुलेटिंग विद वन ग्रुप. somebody raise their hand. Okay. Okay, I think not. So basically वैक्यूम जनरेट हो रहा है, आपके नीचे नहीं आ रहा पैसा, पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, इट्स जस्ट एक्यूमुलेटिंग विद वन ग्रुप. ठीक है, सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ, कि हमारी इकोनॉमी इज अ वैक्यूम इकोनॉमी. देन हमारे पास दूसरी चीज है सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, कि पाकिस्तान में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना जेंडर के मामले में इनइक्वालिटी है. ठीक है, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ कि लेट्स सपोज पंजाब के अंदर लेट्स सी कि लड़कियों के लिए स्कूल्स जो हैं वो कम है लड़कों के मुकाबले में. ठीक है, इसी तरह लड़कियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है लड़कों के मुकाबले में. दैट इज एन एग्जांपल. ओके, आगे है एजुकेशन. एजुकेशन या एजुकेशन जो एक्सेस है या एजुकेशन सर्विसेज का जो एक्सेस है उसमें इनइक्वालिटी है. रूरल एरियाज में आपकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अर्बन एरियाज में है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एंड दे आर नॉट लाइक अप टू द मार्क, बट स्टिल देयर आर यूनिवर्सिटीज़, बट जो रूरल एरियाज हैं उनमें नहीं है. देन हेल्थ सर्विसेज देख लेते हैं कि हेल्थ सर्विसेज भी ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स की कमी है, शदीद कमी है. ठीक है, आपके लाहौर टाइप जैसे बहुत बड़े आपके मेगा सिटीज़ हैं, इनके अंदर भी इवन हॉस्पिटल्स की कमी है, पब्लिक हॉस्पिटल्स की कमी है. ठीक है, एंड देन उनको पुअरली इक्विप्ड किया गया, मतलब वो पुअरली इक्विप्ड हैं, उनको कोई खास फंडिंग नहीं मिलती, एंड अगर मिलती है तो करप्शन सेक्टर टाइप चीज़ों की वजह से वो एक्चुअल जगह पे नहीं लग पाती. ठीक है, और इसी तरह डॉक्टर्स की कमी है. सो दैट इज हेल्थ सर्विसेज के अंदर इनइक्वालिटी होना. ठीक है, फिर है अनइक्वल डेवलपमेंट. अब हम फॉर एग्जांपल प्रोविंसेस के दरमियान ही देख लेते हैं. एक प्रोविंस में लेट्स सपोज मेट्रो सेक्टर एग्जिस्ट करती है, बट बाकी दो में नहीं, बाकी तीन में नहीं करती. ठीक है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी. और डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट बजट, आपका डेवलपमेंट बजट एक प्रोविंस को बहुत ज़्यादा एलोकेट हो जाता है, बाकियों का नहीं होता. ठीक है, सो दैट इज अनइक्वल डेवलपमेंट. ठीक है, देन हम देख लेते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है, कि आप औरतों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आप सही से आपकी जितनी एथनिसिटीज़ है उनको सही से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती. तो इस तरह के भी मसले हैं. उसके आगे अगर हम एक केस स्टडी ले लें. ठीक है, तो मैंने केस स्टडी ली है कि प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर प्रोविंशियल डाटा है ये. ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2020 से 2021 का ये डेटा है. सो उसके अंदर बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नंबर्स बताए हैं कि ईच प्रोविंस के अंदर कितने इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बाय द वे आपकी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इनरोल्ड है. ठीक है, बिकॉज अगेन डिस्पैरिटी है और लाइक दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल्स सेक्टर. सो अगर देखा जाए तो सिंध में अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 2021 के स्टैटिस्टिक्स, सिंध में सबसे ज़्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइमरी लेवल पे, देन पंजाब में है, देन केपी में है, एंड देन बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा कम है. देन उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में, दैट इज़ 290. उनका जो नंबर है 290 है. सो दिस मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है प्रोविंसेस के दरमियान इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, और ये छोटी सी एग्जांपल है. इफ़ वी कैन आल्सो टेक दिस एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, आगे देखते हैं कि
अगर कोई मसला है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले कोई आइडेंटिफाई करते हैं इनइक्वालिटी अपने इर्द गिर्द, ठीक है। फिर हम उसको 3 लेवल्स पे उसका सोल्यूशन सोचते हैं। हम देखते हैं कि हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। फिर देखते हैं कि सोसाइटल लेवल पे क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। फिर देखते हैं कि पॉलिसी लेवल के ऊपर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। एंड थर्ड होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. For example, when I was working in Pakistan Red Crescent, ठीक है, we came to know कि there is a street school जिनके पास सही स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। उनके पास प्रॉपर जो है उनके पास प्रॉपर स्टेशनरी नहीं है, उनके पास प्रॉपर टीचिंग रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं है. सो अब ये इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था? इसका सोल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पे क्या था कि या ग्रुप लेवल पे क्या था कि वी मेड अ ग्रुप, ठीक है। वी नेम्ड आवर प्रोजेक्ट लिटरेसी, ठीक है। आई वाज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया कि हमने फंड रेजिंग की सबसे पहले सबसे, ठीक है। और हमने सोचा कि हम उनको प्रॉपर लर्निंग रिसोर्सेज देंगे। हमने उनसे पूछा कि व्हाट आर योर नीड्स। ऐसे हमने नहीं किया कि हमने खुद से जो है वो चीज़ें वगैरह ले ली, बिकॉज वी डिड नॉट नो कि उनकी नीड्स क्या हैं. सो वी आस्क्ड देम कि आपकी नीड्स क्या हैं. सो दे टोल्ड अस कि हमें ये चीज़ें चाहिए. वी सेड ओके वी विल प्रोवाइड इट टू यू. फिर हमने क्या किया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया कि फंड रेजिंग की, ठीक है। एंड देन फंड रेजिंग के बाद हमने वो चीज़ें खरीदी प्रॉपर, ठीक है। और हम उधर गए बाकायदा, हमने उन बच्चों को जो है उनके साथ टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उनको पढ़ाया, ठीक है। उनको मतलब उनके साथ प्रॉपर हमने जो है ना ऐसे नहीं किया कि उनको हैंड ओवर कर दिया फॉरेन लर्निंग रिसोर्सेज. वी ट्राई टू बिल्ड रिवॉर्ड एंड क्या कहते हैं गुड बिहेवियर एंड रिवॉर्ड वाली चीज, ठीक है. सो वी इनकरेज देम, ठीक है. एंड देन वी गेव देम द स्टेशनरी. वी ऑल्सो टोट देम 2 or 3 people of my group also including me also taught in that street school, ठीक है, for some days. और उसके बाद जो है हमने एंड पे उनको गिफ्ट्स भी दिए टू इनकरेज द चिल्ड्रन, ठीक है, इनकरेज देयर गुड बिहेवियर. सो अब आई वुड वांट यू गाइस कि आप अपने इर्द गिर्द एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि व्हाट डू यू थिंक कि आपकी कम्युनिटी में सबसे बड़ा इशू क्या है, ठीक है. एंड देन आप लोग उसका सोल्यूशन सोचें. सोसाइटल लेवल पे इस तरह से सोल्यूशन हो सकता है कि काफ़ी सारी एनजीओज काम कर रही हैं, ठीक है. काफ़ी सारी एनजीओज इस तरह से काम कर रही हैं. फॉर एग्जांपल कूड़ा करकट जो है इधर उधर फैला हुआ होता है. सो मेनी सोसाइटीज आर वर्किंग फॉर दैट. वो क्लीनिनेस ड्राइव्स वगैरह करती हैं, ग्रीन ड्राइव्स वगैरह करती हैं. सो दे पिक द ट्रैश and then they put and then they plant a lot of plants etc, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. और या सोसाइटल लेवल पे काफ़ी सारे ग्रुप्स बना के जो है वो बड़े बड़े ग्रुप्स बना के काम किए जाते हैं, ठीक है. जबकि इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, ठीक है. सो एंड पॉलिसी लेवल एक होता है. पॉलिसी लेवल अगेन ये होता है कि गवर्नमेंट का क्या काम है एंड गवर्नमेंट को क्या करना है, ठीक है. सो आई वुड वांट यू गाइस कि आप एक कोई भी एक जो है ना अपने इर्द गिर्द इशू सोचें, ठीक है, कम्युनिटी में जो परसिस्टेंट है, जो बहुत बड़ा आपको इशू नजर आता है, ठीक है. एंड देन आप उसका सोल्यूशन एक आइडेंटिफाई करें, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे एंड पॉलिसी लेवल पे. पॉलिसी लेवल पे इस तरह से कि आपको लगता है कि पॉलिसी लेवल पे क्या फ्लॉज है, पॉलिसी लेवल पे यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या फ्लॉ है, एंड देन आप गवर्नमेंट इसको सही कैसे कर सकती है, ठीक है. तो आई वुड वांट के आप लोग को मैं 10 मिनट दूंगी एंड देन यू गाइस थिंक अबाउट दिस, ब्रेनस्टॉर्म करें एंड देन write it in a form of map or whatever, and then आप लोग जो है बारी बारी unmute yourself and then talk about it, or if you cannot unmute then again chat box is available for you guys. So please आप लोग ये काम करें अभी. Problem could be anything, ठीक है. Again problem could be related to climate, right? Problem could be related to cleanliness in your community के वहाँ पे cleanliness नहीं है. Problem could be educational institutes नहीं है, ठीक है. Lack of educational awareness हो सकती है and all that, ठीक है. And what you can do in personal capacity to solve that issue, and government को क्या करना चाहिए to solve that issue. अगर by chance you have a problem
जिस पे गवर्नमेंट का काम नहीं बनता बट इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पे उसका सोल्यूशन बनता है, देन यू कैन राइट दैट डाउन. I will also brainstorm an idea, okay? And you guys do the same. And then when jab ho jaye, then raise your hand. जी प्लीज स्पीक अप, जिसने भी रेस किया हैंड. जी बुशरा प्लीज. अच्छा मैम, मैंने जो है एक इसमें जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो है स्टूडेंट लेवल पे। अगर हम बात करें तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये पाकिस्तान की मैं बात करूंगी फिर वक्त के लिए। इसमें देखें हमें ये एक इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो बिल्कुल उनके लिए जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ आए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया, तो इसमें जो है देखें इंडिविजुअल लेवल पे हम नेटवर्किंग कर सकते हैं प्रोफेशनल लोगों से। फॉर एग्जांपल देखें ना, ये हम इसी वर्कशॉप्स की एग्जांपल ले लें। इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ हमें यहाँ से एक कह लें नॉलेज मिल रहा है, बल्कि हम जो है बहुत से प्रोफेशनल लोगों के साथ भी जो है हमारा नेटवर्क जो है कनेक्शंस जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, मेंटोर्स फाइंड करें। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे अकाउंट्स बना लें, वहां से लोगों के साथ अगेन नेटवर्किंग करें, मेंटोर्स फाइंड करें जो कि आपको गाइड एंड सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ये चीज देखें कि कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन चीजों पर फोकस कर रही है। सपोज दैट अगर एक बिजनेस स्टूडेंट की बात करें तो वो देखेगा अगर उसके पास आइडियाज हैं, ही और शी इज एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है या कुछ इस तरह से, तो वो क्या करना चाहिए? उसको इंडिविजुअल लेवल पे उसको इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ मूव करना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिस मर्जी लेवल पे हो, उसको इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ मूव करना होगा। ये तो एफर्ट्स होगी उसकी क्या उसे कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और इसके अंदर साथ ही साथ जब वो इन चीजों की तरफ देखेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब सर्च जो स्ट्रेटजीज उसकी लाइक है ना, फॉर एग्जांपल उसमें उसकी अपनी स्किल्स आ जाती हैं कि आया कि वो इस जॉब के क्राइटेरिया पे उतरता भी है कि नहीं, एलिजिबल भी है, यानी अपनी रेज्यूमे जो है वो उसको अच्छा जो है वो बिल्ड कर लेगा, इंटरव्यू के लिए अच्छा वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये सारी चीजें वो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को जो है वो कह लें अप स्किलिंग कर लेगा, रीस्किलिंग कर लेगा, ये चीजें उसमें आ सकती हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इसके अलावा वो अब इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो ऐसे मुआशरे में रह रहा है, देखे ना कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली जितने मैंने सोल्यूशन बताए होपफुली वो इसमें वैलिड हो सकते हैं। और आपने बात की ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, अगर हम बात करें या कह लें पॉलिसी जो लाइक सिस्टमेटिक लेवल कह सकते हैं, तो उसमें जो है ऑब्वियसली हुकूमत को जो है वो इक्वली जो है वो जॉब क्रिएशन करनी चाहिए। ऐसा होता है यहाँ पे कि साल बाद जी अगर डॉक्टर्स की वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें से 80% तो ऑलरेडी जो है वहाँ पे वो रिजर्व्ड होती हैं कि ये तो डॉक्टर्स के बच्चों की हैं, तो 20% जो है वो उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं जिसमें करप्शन और वो सिफारिश वगैरह होती है और ये इश्यूज आ जाते हैं। सो यहाँ इन चीज़ों पे जो है उनको पॉलिसीज जो है वो रिफॉर्म करनी चाहिए, उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा उनको एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो रखने चाहिए। तो इससे जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स भी निकल आएंगे ऑब्वियसली, जब लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और ये चीजें होंगी, लोग इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो आई थिंक सो ये चीजें हो सकती हैं, बाकी आप बेहतर गाइड कर सकती हैं। थैंक यू।
जी, thank you, Bushra. Or if anybody else wants to speak up, please do right now. So basically, आपके जो okay, wait, Taiba. Basically, Bushra, what you said about the policy level, के वहाँ पर quota system and all that things. You're right about that. Again, the issue lies with the systematic flaws, के corruption is sector and everything. तो दैट इज द मेन थिंग जिसकी वजह से इनक्वालिटीज इस सेक्टर भी एग्जिस्ट करती हैं. सो वो चीज़ जो है यस पॉलिसी लेवल पे ही सॉल्व होगी. ओके तैयबा प्लीज स्पीक अप. सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट मसला है एजुकेशन सिस्टम का ख़राब, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है ना, मैं खुद जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और अब मैंने क्या देखा है कि 2-3 सालों से ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे पे बच्चा जो है ना बीएस लेवल पे भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं. 45 नई फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद ना उसमें एमफिल नहीं करवा रहे हैं, पीएचडीज नहीं करवा रहे हैं. तो बच्चे जो है ना वो रुल रहे हैं, ज़लील हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान का कुछ बने, क्योंकि इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बन सकता. बच्चे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, उनको बाहर अगर मिलती है तो वो बाहर फ़ौरन चले जाते हैं, और उनके लिए ये ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पे तो उनको कुछ भी नहीं फ़ायदा हो रहा, पढ़ लिख के वो इधर-उधर रुल रहे हैं. तो सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको ठीक करना चाहिए. डू यू हैव एनी इंडिविजुअल लेवल पे कोई रिकमेंडेशन कि इसको कैसे सही कर सकते हैं, या डू वी हैव एनी रोल इन दिस? इंडिविजुअल लेवल पे उसी टाइम पे करेंगे ना जब आगे आपको पता होगा कि आपको, मतलब कि ये सपोर्ट कर सकती है चीज़. अगर आप किसी कंपनी के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी छोड़ें, किसी भी मतलब छोटे-मोटे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होते हैं, वो तो छोटे लेवल पे काम करता है ना, उसके साथ तो काम हो जाता है. लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो फिर वही मसला होता है, फंडिंग्स और कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो लोग कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट. तो फिर जो है वो लोग इस चीज़ से दूर हो जाते हैं. अगर यही ठीक हो तो इंडिविजुअल लेवल पे ऑटोमेटिकली काम होता रहे. राइट. जी बुशरा प्लीज. मैं इनकी बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगी, बाकी आप भी कंप्लीट कीजिएगा. मैं इसमें इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखें, जब आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने लिए एक फील्ड चूज करने लगे हैं, तो आपको इतना सेंसिबल होना चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे जो सबसे बड़ा इशू है, पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे इस इशू को सॉल्व करना चाहिए कि देखें, जब हम कोई फील्ड चूज करने लगे हैं ना, सपोज दैट आज के इरा में हम देखें तो कंप्यूटर साइंस का जो है वो बहुत ज्यादा कह लें डिमांड है उसकी. ठीक है, हमारी आवाम क्या करती है, आज से 10 साल पीछे चले जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप था. हाँ, इन्होंने देखा कि मार्केट को जी 1000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है, 1 लाख स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया. हुआ क्या, मार्केट को तो 10,000 की जरूरत थी ना, वो 10,000 पूरे हो गए, बाकी 90,000 जो हैं वो फ्री बैठे रहे. ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू था. इन्होंने ये मार्केट में बल्क ले आते हैं, सबसे बड़ा इशू ये है. इस बल्क को बचाने के लिए आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो शुरू से ठीक रखें. तो आपकी ये बात तो एक मिनट. तो Sure. बिशरा, एक मिनट, ये तो यूनिवर्सिटीज की गलती है ना कि वो इतने बच्चों को ले ही क्यों रहे हैं. वो लिमिट रख दें, मेरिट बना दें कि इतने, इससे ज्यादा बच्चे ले ही नहीं सकते, और इतने से इतने मेरिट वाले. वो तो खुद, उनको पैसा चाहिए, जैसे मर्जी कमाओ भाई, उनका जरिया है. अगर वो इस चीज को छोड़ देंगे तो फिर उनका कैसे पूरा होगा. मुझे बताओ कि अब मैं पढ़ती हूँ हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में. ठीक. उनकी 50,000 पर सेमेस्टर फीस है. अगर वो 50 बच्चे ना लें मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग, 3 शिफ्टों में, तो मतलब ये मॉर्निंग की फीस थी जो मैंने बताई है, क्योंकि मैं मॉर्निंग स्कॉलर हूँ. बाकी 2 की डबल है, तो फिर उनका कैसे पूरा होगा, सेल्फ सपोर्टिंग और इवनिंग की. ये तो उनको चाहिए ना कि वो लोग जो हैं वो बच्चे ही ना लें,
सेचुरेशन मतलब डिवाइड कर दें कि देखो अगर मेरिट के हिसाब से भी और ज़रूरत के हिसाब से भी। अब एक बच्चा बायो पढ़ता है 12th तक, ठीक है ना, मैं कहती हूँ मेडिकल पढ़ता है, एंड आगे जाके एमबीबीएस का क्या हाल हो रहा है, वो इतना पैसा खर्च करता है एमडी कैट के ऊपर कि उसने एमबीबीएस करना है, क्या होता है, नहीं मिलता उसको। मैंने इतने बच्चों को देखा है, इतने लोगों को, आप लोगों ने भी देखा होगा, जाहिर सी बात है आप लोग भी यहीं रहते हैं, तो वो बेचारे एक 12वीं तक पढ़ के मेडिकल वो किसी बीबीए में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं जहाँ पे उनको मिल रहा है वो वहां पे जा रहे हैं। तो ये तो इनकी गलती है, हमारी गलती तो नहीं है। हमें तो जहाँ एडमिशन मिलेगा हम तो वहां पे जाएंगे ना, ये देखें ना, ये बात भी तो है ना। देखिए आपने बात कर दी वो पॉलिसी लेवल पे, आपने बात कर दी कि गवर्नमेंट के लेवल पे आपने बात कर दी, मैं बात कर रही थी इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये जस्ट कहना चाह रही थी कि आपको अपना पाथ डिफाइन होना चाहिए। आज के इरा में हम ये नहीं कह सकते, अगर मैं खुद बीबीए कर रही हूँ, मैं यूआईटी लाहौर से बीबीए कर रही हूँ और मेरी फीस भी 70,000 है, और वहां पे भी इसी तरह से जो है वो शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स को लेते हैं। लेकिन अब उनका काम तो ऑब्वियसली, एक इदारे का काम क्या है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना, स्टूडेंट्स को वहां पे डिग्री प्रोवाइड करना। एक गवर्नमेंट की डिग्री लेने के लिए हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जाना है, अब जी हमें कहीं नहीं एडमिशन मिल रहा तो जाना है वहां पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बाद में जो आनी है, आपने बाद में जो कहना है हमें जॉब नहीं मिली, हमने ये डिग्री वहां से कर ली, यूआईटी का बड़ा नाम है लेकिन डिग्री हो गई, जॉब नहीं मिली, तो इशू कहाँ पे आया, आपकी चॉइस पे, आपने आपने गलत चूज किया वहां पे। जी थैंक यू। आई थिंक दोनों के पॉइंट्स वैलिड है। आई डू बिलीव के इंडिविजुअल लेवल पे पाथ डिफाइन होना चाहिए, बट ऑल्सो क्या कहते हैं तैयबा, आपका जो पॉइंट था कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को नहीं लेना चाहिए, ओके यहाँ पर ना क्रिटिसिज्म आता है, काफ़ी सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम कि किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की एक रेस होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर मेनी पीपल क्रिटिसाइज दिस थिंग के द सिस्टम, दे क्रिटिसाइज द होल सिस्टम कि ये इस सिस्टम की वजह से है कि पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन एडवांटेज, या वो अपने सेल्फ के लिए, अपने बिजनेस के लिए हर चीज़ करते हैं, ठीक है। हर किस्म की जो है ना, हर किस्म के एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द सिस्टमेटिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है वैलिड, ठीक है। एंड देन जो कौन था, विश्रा, ओके यू आर ऑल्सो राइट कि इंडिविजुअल लेवल पे अवाम में एक रुझान पे बढ़ जाता है, अगर वो एक को देखते हैं कि सक्सेसफुल के मेडिकल में जाने वाले लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सो दे ऑल गेट इनटू द रैट रेस, और वो सब जो है उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, एमबीबीएस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ट्राई करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो दैट प्रॉब्लम लाइज विद अस, विद द पीपल, ठीक है। सो यू आर राइट, बट देन अगेन मेरा एक पॉइंट ये भी होता है अक्सर इस बात पे कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ 17-year-old या 18-year-old टू नो कि उसने किस फील्ड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं होती। मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारे कॉलेज में आई वाज इन प्री मेडिकल, एंड सो एवरीबडी was told कि आपका only option is MD CAT पास करना है ना, आपने MBBS में जाना है। So there was no career counseling. So that is also a problem on a societal level कि career counseling नहीं है, and then government level पे भी ये problem आ सकती है कि government भी किसी किस्म की कोई counseling की सेक्टर आप ऑफर नहीं करती, ठीक है। So ये issue आ जाता है। तो ये दोनों तरफ से issue है। So दोनों तरफ से solution इसका जरूरी है। Then I can see 2 messages in the chat box, और किसी ने hand raise किया था। Can you please unmute yourself? Assalamu alaikum, ma'am. Am I audible? जी you are. Okay. जी Assalamu जी alaikum, ma'am. I hope you're doing well. First of all, like, thank you so much for conducting such a beautiful session on this gender equality. Not gender equality, sorry. Yeah, आज का goal number 10 है. It is one of my favorite lesson. My favorite SEG. Actually, I want to add to Taiba's and Bushra's point. Like what you said कि हमारे पास training नहीं होती, career counseling नहीं होती. I've been working with an organization for almost 2 years. एंड हम लोग करियर काउंसलिंग पे ना फिलहाल हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है लाइक ऑन द इंडिविजुअल लेवल। व्हाट वी कैन डू इज, अब हम अभी स्कूल्स में ये चीज़ इनिशिएट करें कि फ्रॉम आपकी तो लाइक कॉलेज में करते हैं, मतलब कॉलेज तक वो लोग करते हैं कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, बट वी आर इन स्कूल। जब हम स्कूल में थे तब हमारी मतलब उन्होंने करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी
कि लाइक आपको आगे क्या करना है। मैं मतलब मुझे सब यही कहते थे कि मेडिकल करना है, मेडिकल जाओ। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में, मुझे ज़्यादा आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। सो आई वेंट टू दैट, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमारी काउंसलिंग ऐसी की थी कि हम लोगों को पता था, वो हमारे स्किल्स देख के, वो हमारे इस तरह वो एक टेस्ट होता है उसको देख के हमारे उस बेसिस पे हमें बताते हैं कि ओ यू आर ओके फॉर दैट फील्ड, या ये इस तरह जो तैयबा का क्वेश्चन है ना कि जिस तरह सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मेरिट बेस पे रखो या उस पर रखो, तो उन स्टूडेंट्स को खुद भी नहीं पता होता कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। तो इसलिए भी सारे वो एक ही तरफ चले जाते हैं। जिस तरह भी मेडिकल का आया, BSN का स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट हो गया, तो करियर काउंसलिंग लाइक यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग भी करवा रहे हैं आजकल, ऐसे सेशंस रखवा रहे हैं। तो मैं तो अपनी कम्युनिटी में इस तरह के सेशन रखवाती हूँ कि मोस्टली हमारा टारगेट यही होता है कि जो 9-10 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उस एज में कोई आइडिया नहीं होता कि हमने क्या करना है। देर ऑल व्हाट यू से के मतलब ब्लैंक होते हैं सारे, तो उनके स्किल्स को ही हम लोग यूटिलाइज करके उनसे क्वेश्चंस करवाते हैं, उनसे ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ओ दैट पर्सन इज, और या दैट स्टूडेंट इज गुड एट दिस, मैथ्स में अच्छा है, मेडिकल में अच्छा है, या उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। मतलब डिफरेंट फील्ड्स, आपको पता है कितनी फील्ड्स होती हैं। तो ये है कि मैं इन दोनों के उस पर ये ऐड करना चाहती थी। दैट वाज माय पॉइंट। तो या Yes, thank you, Urfa. You're right. Career counseling is important. You're right. And school level से ही ये start हो जाए तो it's best, because आगे जाके फिर उन्होंने मजीद choose करना होता है कि where do they wanna go, like maths and bio and all that. तो वो चीज़ें भी matter करती हैं। And you're right कि career counseling metric और 9th 8th के level से start हो जानी चाहिए. Okay. I see 2 messages in the chat box. Let me read them. Shireen ने बोला है कि there is a big intersex community near the area where I live, and the conditions are deplorable. They can only beg dance. There is no proper or respectable employment for them. I think there's a lack of awareness and tolerance among the masses, and that is the biggest problem, because we cannot uplift these communities and invest positively in them if the general public is still biased against them. You're right, Shireen. यहाँ पर individual attitude की बात आ जाती है towards them कि like their intersex community, and उनके बारे में बहुत ज़्यादा misconceptions है लोगों के दिमागों में, and उनके पास they have no choice but to beg and dance like professions like these. So I do think कि yes, awareness की ज़रूरत है. So individual level पे, society level पे, we need to change our attitudes towards them. You're right. And one more thing I want to add here is कि पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाती है पॉलिसीज, ट्रांसजेंडर पॉलिसीज, या क्या कहते हैं, दे से ट्रांसजेंडर पॉलिसीज, एंड देन आवाम जो है उसके खिलाफ फिर बोलती है. द प्रॉब्लम लाइज हेयर विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजिंग. ठीक है, मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस के ट्रांसजेंडर, द वर्ड ट्रांसजेंडर मीन्स के somebody who can change their gender. ठीक है, but what they should be using instead is intersex, the term intersex. ठीक है, for example, when I was working on my policy paper, at first I considered this topic, and uske andar when we started reading the policy was evidently for the intersex community, but they were constantly using the term in transgenders, which gave the public a wrong idea कि जो है ना, they are giving rights to a transgender community and all that LGBTQ stuff. So that is where my opinion lies. Okay, yes, Chaudhary Asad, please. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरी नज़र में ये है कि एक तरफ जैसे वुमेन को इस्लाम के मुताबिक और दूसरे तरीके से भी आज़ादी है और बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में रिस्पेक्ट दी जाती है। यानी कि जैसे अगर कोई लाइन लगी हुई है किसी बैंक के बाहर तो मर्दों की लाइन ज़्यादा है, और अगर एक औरत आएगी तो लोग सारे हट जाएंगे और वो जाके अपना काम कर ले। इसी तरह मर्द, जब बात मर्दों पे आती है तो मर्दों के पास वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। यानी कि अगर आप देखें इस सोसाइटी में एक अगर औरत ने कुछ गलत किया है तो लोग कहेंगे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसी तरफ अगर किसी मर्द ने वही काम किया तो लोग उसको डबल मारेंगे भी। और यानी कि अगर एक औरत और मर्द का लड़ाई हो गई है किसी बात पे तो लोग मर्द को ही गलत कहेंगे कि उसने गलत किया है, हालांकि अगर बेशक उसकी गलती भी ना हो। तो ये चीज़ हमें सोसाइटी से ख़त्म करनी चाहिए कि अगर यानी कि बायस जो होके जो हमारी सोसाइटी में काम चल रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप आई एग्री विद यू कि मुझे नहीं लगता कि
ये जो फजूल का कंपैरिजन बनाया हुआ है, लाइक मर्द एंड औरत आर नॉट इन मतलब are not in a competition, they are complementary to each other, ठीक है. So I don't think कि ये जो पूरा competition है कि मर्द गंदे हैं या औरतें फजूल हैं and all that, I don't believe in that. So yes, you're right कि जब कोई women card अक्सर औरतें खेलती हैं, there are many women जो फजूल में accuse कर देते हैं किसी को, for example, then the society bashes the man in that case. I know a lot of cases like this personally, so I do not agree with that, and it just results in a person suffering of a person. So I do not agree with that. matlab I do not agree with the notion ke औरतों को आप कुछ ना बोलें. If somebody is in the wrong, irrespective of their gender, they should be bashed, they should be, penalized for that. Naila, will you please add your comment? Assalamu alaikum, ma'am. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम जी, यू आर. मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, तो जैसा कि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, अगर मैं देखूं तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का है, क्लाइमेट चेंज के हैं, हर साल जो है वो सैलाब आते हैं. इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है. तो जितने भी गिलगित बाल्टिस्तान के स्टूडेंट हैं, उनको तालीम हासिल करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद या कराची जाना पड़ता है. तो मेन जो इशू मुझे लगता है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, क्योंकि अगर हम बाई एयर जाते हैं तो वो टूरिज़्म की वजह से बाई एयर के जो है वो रेट बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, जैसे कि 30 अबव हो गए, तो जो कि नॉर्मल लोकल पीपल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. और दूसरा ये कि अगर हम बाई रोड चले जाएँ, तो अगर हम बाई एयर चले जाएँ तो बाई एयर में जो है इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये टूरिज़्म की वजह से. दूसरा, अगर हम बाई रोड चले जाते हैं तो बाय रोड में जो है वो हमारे पास पूरे 24 घंटे लगते हैं, और रोड भी जो है वो हमारे पास ऐसा कुछ इतना खास सही से नहीं बने हुए. लाइक अगर मौसम ख़राब हो गया तो हमारे पास लैंडस्लाइडिंग होगी, और जितने भी मुसाफिर है वो जो है वो रोड पे 10-10 घंटे जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होकर रह जाते हैं. तो ना, अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो इतनी इमरजेंसी वाली वो सीन है कि जो है वो जल्दी से जो ब्लॉकेज हुए हैं उनको फ्री करें, या रोड को जल्दी से रिपेयर करें. जो जितने भी मुसाफिर है वो जो है वो 10-10 12-12 घंटे जो है वो बाय रोड सफ़र में रहते हैं. तो जितने भी हमारे इशू फेस हो रहे हैं वो जीबी के स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ना कॉलेजेस, ना स्कूल इतने ज़्यादा हैं, ना यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं. तो हम यहाँ से जब इस्लामाबाद वगैरह जाते हैं तो हमारे पास मेन ट्रांसपोर्टेशन का आता है. तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे पास जो है वो अच्छी जो है वो हमारे पास रोड को अगर थ्रू अच्छे से करें, या लोकल को जो है वो एयर का टिकट जो है वो कम करें. और इसके अलावा जो ड्राइवर है वो अनट्रेन, जो उनमें स्किल नहीं है, ऐसे ड्राइवर रखे हुए हैं. तो बेचारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं और वो इस्लामाबाद पहुँचे बगैर बीच रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर भी इतने स्किल नहीं है और रास्ते भी इतने ख़राब है. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो या तो हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हमारा सही कर दें, या फिर हमें जो है वो बाई एयर में थोड़ी जो है वो कंपनसेशन कर दें एज कम्पेयर टू अदर्स. दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन गिलगित बाल्टिस्तान. Right, thank you, Naila. I think yes, government needs to play its role. Infrastructure development government का काम है, and लैंडस्लाइडिंग वगैरह काफ़ी दफ़ा जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है. So वहाँ पर पर्सनल एटीट्यूड आ जाता है कि you have to take care of the environment around you. And transportation का yes, you're right कि ये बहुत बड़ा इशू है कि untrained ड्राइवर्स होते हैं and then accidents एक्सेट्रा हो जाते हैं. You're right. So यहाँ पे गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस एंड गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जरूरत है. ओके, आई सी 2 more messages. ओके, अवैस ने भी मैसेज किया हुआ था ऊपर के the root of the problem seems to be widespread ignorance and prejudice that persists in society. Until these attitudes change, it will be difficult to support and uplift these individuals. Okay, right. इन्होंने जो है वो ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स वाली बात पे जो है वो कमेंट किया हुआ है. ओके, जवेरिया ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गार्बेज की इन हर कम्युनिटी. Javira, you did not pinpoint the solutions. Can you please write the solutions? Okay, आगे अवैस ने दोबारा से कोई comment किया हुआ है उसी debate के ऊपर. Many intersex individuals in our community face severe challenges, including limited access to dignified employment. Yes, you're right. Career counseling school level पर important है. ठीक है. Okay, thank you अवैस for your comments. आगे है काजमा ने हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है प्लास्टिक पोल्यूशन की. ओके, एंड उसका सोल्यूशन उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ये दिया है कि रिड्यूस प्लास्टिक यूजेज. ठीक है, प्लास्टिक जैसे रीयूजेबल आइटम्स है, जैसे बैग्स होगी, बॉटल्स होगी, आप उनको रीयूज करें. ठीक है, और रिसाइकिल करें. ठीक है, और रिड्यूस करें. 3R पे उन्होंने कहा है काम करें.
इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और सोसाइटी पॉलिसी लेवल के ऊपर उन्होंने कहा है कि इन्फोर्स करे रेगुलेशन, ठीक है, जो कि सिंगल यूज पॉलिटिक्स सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो बैन करें, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को प्रमोट करें। थैंक यू। नाम क्या था आपका? और अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। थैंक यू काजमा, यू राइट। आगे है अनुषा ने कहा है कि डिजिटल डिवाइड। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. The digital divide refers to the gap between those who have access to digital technologies and the internet and those who do not. This disparity affects access to information, educational resources and job opportunities. ठीक है, थैंक यू अनुषा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डिजिटल डिस्पैरिटी है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक इट्स एन आईटी का दौर, ठीक है। और अगर आईटी के दौर के अंदर किसी इंसान के पास जो है वो मोबाइल्स ना हो या उसके पास रिसोर्सेज ना हो, नेट ना हो, तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे हिंडर होते हैं। यू राइट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो फ्रीलांसिंग वगैरह से पैसे कमाते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई नो आर डूइंग सम काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, ईदर दे आर गेटिंग आउटसोर्स वर्क या फिर वो खुद अपनी जो है वो डायरेक्ट फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो येस, जो ये डिजिटल एज के अंदर ये रिसोर्सेज ना होना इज़ अ बिग डिवाइड, ठीक है, इज़ अ बिग इनइक्वालिटी. सो अनुषा, डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस? कैन यू प्लीज राइट अ सोल्यूशन और पिन पॉइंट अ सोल्यूशन यू कैन थिंक ऑफ? आगे जवेरिया हैं, उन्होंने कहा है, अच्छा जवेरिया ने ऊपर, जवेरिया का क्या मैसेज था? सॉरी आई फॉरगॉट. ओके, गार्बेज इश्यू था। उन्होंने सोल्यूशन ये दिया है कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को एटीट्यूड उनका चेंज हो कि आप कूड़ा करकट ना फैलाएं, ठीक है, यहाँ उधर इधर उधर ना फेंकें, ठीक है, रोड साइड पे। और इसमें फिर ये कि एजुकेशन और अवेयरनेस वगैरह की ज़रूरत है, ठीक है। पोस्टर्स और फ्लायर्स यूज़ करें, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के अवेयरनेस फैलाएं। और पॉलिसी लेवल पर ये है कि एडवोकेट फॉर फाइन्स, ठीक है, ये हेफ्टी फाइन्स अगर आप लगाएंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी, तो लोग ऑटोमेटिकली नहीं फैलाएंगे कूड़ा. Support local policies that impose fines for littering as a deterrent can be effective in changing behavior. Yes, you're right. कि आपको implement करना है ये जितने भी आपने फाइन जैसे एक्स्ट्रा इम्पोज किए हुए हैं, इसके थ्रू जो है आप काफ़ी सारे लोगों को डिस्करेज करेंगे फ्रॉम दिस गार्बेज, अनसेफ गार्बेज डिस्पोजल. आगे मैं बात करूंगी, अभी हमने बात कर ली लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है, कि लोकल लेवल के ऊपर आपकी कम्युनिटीज़ के अंदर. ओके, अनुषा ने सोल्यूशन शेयर किया, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लेवल. वो छोटा सा पार्ट इन द एनालिसिस विल कम टू एन एंड. ओके, अनुषा ने बोला है कि वर्कशॉप्स को आप ऑफर करें, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट नेविगेशन एंड ऑनलाइन सेफ्टी, ठीक है, प्रोवाइड 101 ट्यूटरिंग, ऑफर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल, ठीक है. ओके अनुषा, आपका जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को डील कर रहा है डिजिटल डिस्पैरिटी के अंदर, कि वो लोग जो कि जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना आती आप उनको सिखा दें. यस, यू आर राइट, ये इज अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम कि काफी सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता. they don't have the resources, they don't have the money to access internet, ठीक है, क्योंकि internet services are very expensive, ठीक है. सेकेंडली काफ़ी सारे लोगों के पास मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स एक्सेट्रा नहीं होते. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन लैपटॉप ओनली, ठीक है. सो वो वाला इशू भी आ जाता है. सो योर सोल्यूशन इज ओनली एड्रेसिंग वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट थैंक यू, गुड एफर्ट. We can work on public Wi-Fi at an individual level and can give training and launch affordable devices. Yes, you're right. Affordable devices वगैरह launch मतलब दे सकते हैं and public Wi-Fi के ऊपर काम कर सकते हैं. अभी पिछले if I remember correctly, पंजाब गवर्नमेंट का ये एजेंडा था कि they will give public Wi-Fi in Lahore. So we will see कि at the end of their 5 term government इनके एजेंडा पे काम होता ही नहीं होता. खैर, आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम देखें तो SDG 10 इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनइक्वालिटीज़ की बात भी करता है. वो कहते हैं कि कंट्रीज के दरमियान की जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसको भी हमने कम करना है. अब वो दरमियान की इनइक्वालिटीज इन व्हाट टर्म्स? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है. यस नाइला प्लीज. मैम आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही. I don't have any further slides for that. तो मैं international level का I'll speak what's it? Okay? ओके मैम. Okay. And I'll stop presenting for now. Okay. So
मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस किस्म की इनइक्वालिटीज की बात हो रही है। अगेन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। हम देखते हैं यूरोप, एक टर्म हम यूज करते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसको कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? नॉर्थ वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया एंड ऑल दोस कंट्रीज, ठीक है। एंड देन ग्लोबल साउथ कौन से कंट्रीज हैं? जो कि मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस आ जाती हैं, अफ्रीका की एंड एशिया की, ये सारी जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं इनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। सो आई विल यूज द सेम टर्मिनोलॉजी हियर। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है, एक तरफ बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को, अपने लोगों को कंट्रीज ने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है कंट्रीज के अंदर, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिकली जो है डिवर्सिटेटेड है। अब इसकी काफ़ी सारी रीजंस भी हैं, ठीक है। कुछ रीजंस ये हैं कि उन कंट्रीज के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेल्ड है, ठीक है। कुछ रीजंस ये है कि मिडल ईस्ट जैसे कंट्रीज के अंदर वॉर वेज हुई थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमीज जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, उनकी कंट्रीज वॉर टर्न हो चुकी हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, लिबिया। लिबिया के अंदर जब सिविल वॉर हुई और उसके बाद नेटो आया, ठीक है, उसके बाद लिबिया की इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई। वहाँ पे आज तक सिविल वॉर चल रही है, ठीक है, बिटवीन टू फैक्शंस। जनरल हफ्तर है और दूसरी तरफ आई डोंट नो हु द फैक्शन इज, बट बेसिकली वहाँ पे वो उनकी लड़ाई चल रही है। दे आर नॉट एबल टू यूज देयर ओन रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया। इसी तरह सीरिया जैसा कंट्री, उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, ठीक है। इन सब, यमन फॉर एग्जांपल, यमन एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजरा है क्योंकि वहाँ पे नेटो और सऊदी लेड कोलिजन जो है वो गया हुआ है लड़ने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न जो है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में एक बुरी इकोनॉमिक हालत की जो जिम्मेदार है वो वॉर्स हैं, जो कि यूएस लेड वॉर्स हैं बेसिकली। आगे है इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सेस, ठीक है। काफ़ी सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ठीक है। उन कंट्रीज के अंदर फिर ये होता है कि वो आउट ऑफ द पॉकेट जो लोग पैसे पे करते हैं वो फिर रिड्यूस कर देता है। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेती है। पाकिस्तान में भी एक ऐसा इनिशिएटिव आया था। कैन यू गाइज रिमाइंड मी कि वो कौन सा ऐसा इनिशिएटिव था जो पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विस पाकिस्तान में आई थी? डू यू गाइज रिमेंबर? रिपीट कीजिएगा। सेहत कार्ड वाला। आई सेड जी सिद्रा। अभी लेटेस्ट जो आया है वो हेल्थ कार्ड आई है। अगर पहले कोई आई है तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अभी पिछली गवर्नमेंट के अंडर था और जो लेटेस्ट लेटेस्ट इनिशिएटिव है दैट इज द हेल्थ कार्ड। यस यू राइट। मतलब उसके अंदर ये था कि काफी सारी चीजें जो थी ना लोगों की कवर हो रही थी। आई डोंट नो कि वो सारी प्रोविंसेस के लिए था या नहीं था, बट वो पंजाब के लिए था। तो आई थिंक पंजाब में था। आई डोंट नो कि बलूचिस्तान में था या नहीं था, बट बेसिकली वो हेल्थ कार्ड वगैरह आया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की कवर हुई थी, काफ़ी सारी सर्जरीज एक्सेट्रा भी उसमें कवर हो रही थी लोगों की। सो दैट इज अ टारगेट ऑफ यूएन्स बेसिकली, कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लाना है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब ये कि आपने रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली ये और इसके लिए जो है यूएन के काफ़ी डिफरेंट जो है ना, यूएन ने अपने फ्रेमवर्क्स भी बनाए हुए हैं। जैसे फूड सिक्योरिटी से डील करने के लिए उसने फाओ बनाया हुआ है। ये हेल्थ से डील करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एजेंडा है कि 2030 तक हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। और उसके अलावा इनइक्वालिटीज़ इन टर्म ऑफ अगेन वही पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ की बात भी मतलब आ जाती है जो हम कंट्रीज के दरमियान देखते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है ना, वो एक मसला आता है, वो आता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के यूएन कहते हैं। यूएन का एक टारगेट था जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी। वो टारगेट ये था कि हम जो है ना ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट्स कंट्रीज के दरमियान हो जिसमें डेवलपिंग नेशंस का फ़ायदा हो, ठीक है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हों या फिर
कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स हो, ऐसे अग्रीमेंट्स जिसके अंदर डेवलपिंग नेशंस को फायदा हो, ठीक है, ताकि उनकी इकोनॉमिक हालत बेहतर हो, उनके अंदर उनके और जो ग्लोबल नॉर्थ के दरमियान का जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, वो कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा एक टेक्निकल एक मसला आ जाता है। डेवलप्ड नेशंस विल नेवर वांट कि इनइक्वालिटी कम हो, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ विल नेवर वांट कि इनइक्वालिटी कम हो और ग्लोबल साउथ उनके मुकाबले में आए, ठीक है। तो वो ट्रेड अग्रीमेंट्स ऐसे नहीं होते यूजुअली कि वो डेवलपिंग नेशंस को ही फायदा पहुंचाएं, ठीक है। और इफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट द टर्म इकोनॉमिक हिटमैन, तो ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे हमें पता चलता है कि डेवलप्ड नेशंस लाइक चाइना और यूएस वो लोन्स वगैरह देते हैं, ठीक है, एंड देन वो डेवलपिंग नेशंस ऐसे डेवलपिंग नेशंस को लोन्स देते हैं जो उन्हें पता होता है कि वापस नहीं कर सकते, एंड देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिटर्न द लोन्स, तो वो डेवलप्ड नेशंस ऑब्वियसली उनको अपर हैंड मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। देन फिर हमने दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स भी देते हैं। अब ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ चला गया, बट बेसिकली हम आई गिव यू वन एग्जांपल एंड देन वी विल मूव ऑन। वो एग्जांपल है श्रीलंका की। श्रीलंका को चाइना ने लोन्स दिए थे, ठीक है, एंड व्हेन श्रीलंका कुड नॉट रिटर्न दोज लोन्स, तो उसने उसकी एक पोर्ट थी हेमनटूटा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इट इज ऑन लीज, मतलब चाइना के पास है वो अब 99 ईयर्स के लिए। सो इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। सो ये जो जितने भी फ्रेमवर्क्स या जितने भी टारगेट्स यूएन ने इंट्रोड्यूस करवाए ना, दे आर काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक इन माय ओपिनियन, दे आर आइडियलिस्टिक। और असल में दुनिया में जो इनइक्वालिटीज है ना, वो इतने मतलब आसानी से कम होने वाली नहीं है, एंड दे आर नॉट वेरी, you know, what do I say, it's not in the interest of certain countries or certain people to reduce those inequalities. So that is the main issue. और एक और main issue जो developing countries के end पे exist करता है, वो उनके systematic failures हैं। For example, corruption। पाकिस्तान के अंदर फंडिंग अगर कोई कंट्री दे भी रहा है पाकिस्तान को, यूएसएड आती थी ना और आती है, तो वो किधर जाती है? वो करप्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। और वो कभी भी एलोकेट नहीं होती उन लोगों के लिए जिनके लिए असल में दी जाती है, या फिर जो यूएन के अंडर जितने भी फ्रेमवर्क्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मसला परसिस्टेंटली हमें नज़र आता है, करप्शन वगैरह का, और ये सिस्टमेटिक फेलियर्स हमें नज़र आते हैं। सो ये मसला डेवलपिंग नेशंस के एंड पे भी एग्जिस्ट करता है। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो रोल बनता है, वो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए वो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए to eradicate those inequalities. The governments have to be active. उनके जो systematic failures हैं जैसे corruption etc. These things have to be sorted out ताकि वो inequalities कम हो सके, ठीक है। आगे मैं अच्छा, अवैस ने कोई comment किया है I guess chat box में, I will read that and then I think फिर हमारा session जो है वो end की तरफ जा रहा है, and I'll ask you one question at the end and then we will wind up. Okay. West students from remote areas of Sindh and Balochistan face significant challenges, including limited access of quality education and job opportunities, often overlooked by policymakers. These regions suffer from higher unemployment rates. Additionally, corruption in local universities exacerbate the issue. Okay, 8 seconds. These institutions tend to prioritize increasing admissions, leading to overcrowded classrooms. Okay, yes, obviously you're right. इट्स अ कमेंट। ओके, आगे वही बात कर रहे हैं कि जो तैयबा का पॉइंट था, वैसे उसको सेकंड कर रहे हैं। ओके, somebody raise their hand. Yes? Okay. I want to ask you a question कि what do you think कि अगर अमीर और गरीब के दरमियान इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या सोशल सर्विसेज की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कंट्री के अंदर, तो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? लाइक आई नो कि डिटोरिएटेड क्या कहते हैं लाइफ सिचुएशन कंडीशन होगी, डिटोरिएटेड लाइफस्टाइल होगा, एंड लोगों में और क्या एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट हो सकते हैं। कैन यू गाइस पिन पॉइंट दैट थिंग कि इसका क्या ऐसा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट हो सकते हैं? जी तैयबा। एहसास कमतरी पैदा होगी उनको, मतलब मुश्किल होगी। अमीर वाले जो हैं वो बिल्कुल ही अब समझेंगे कि हमारी क्लास ही नहीं है मिडिल क्लास, और इनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इस टाइप की चीजें होंगी।
यस यू राइट। और कोई और? जी बुशरा। यस, इसमें काफी सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें जो है लाइक सोशल अनरेस्ट आ सकता है, लाइक जिसमें कह सकते हैं उनकी इनइक्वालिटी और ग्रो करेगी। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, लाइक ऑब्वियसली जब दोनों में इनइक्वालिटी होगी तो अमीर जो है, जैसे कि आपने वो फनल वाली एग्जांपल दी कि अमीर जो है अमीर फिर होता जाएगा और गरीब जो है वो बिल्कुल ही बिलो द लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की। और इसके अलावा क्राइम रेट बढ़ जाएगा, जो सबसे मेन इशू जो है ना। देखें, अगर ऑब्वियसली गरीब है फॉर एग्जांपल, तो वो जब उसको उसकी जो भी जरूरियात है उसकी वो पूरी नहीं हो रही, तो क्राइम ऑब्वियसली वो क्राइम की तरफ चला जाएगा। तो ये चीजें इसमें आ सकती हैं। और कोई कमेंट ऐड करना चाहेगा? ओके, सो यस, बोथ ऑफ यू आर राइट। बेसिकली देखें, जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना एक कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उससे रिजेंटमेंट बिल्ड होती है। ठीक है, निचले तबके के अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होती है। ठीक है, उनमें एक हेट्रेड का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, दे स्टार्ट हेटिंग द एलीट्स। ठीक है, और फिर ऐसा होता है कि अक्सर औकात कोई ऐसा फैक्शन उभरता है या कोई ऐसा तबका उभरता है जो उस रिजेंटमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करता है। यस, सिविल वॉर स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली मुजना, यस यू राइट। वो फिर वो जो तबका होता है ना, वो फिर इस रिजेंटमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करता है और वो फिर अपना एजेंडा पुश करता है उनके थ्रू, और फिर वायलेंस बढ़ता है। उनको उस सोशल क्लास को, लोअर सोशल क्लास को वो फिर यूज करता है टू फर्दर देयर एजेंडा। ठीक है, और फिर उससे ये होता है कि जो एक किस्म का ना क्लैश आ जाता है आपकी कंट्री के अंदर, एंड देन इट रिजल्ट्स इन सिविल अनरेस्ट एंड सिविल वॉर्स। यस असद। मैम, इसमें बांग्लादेश की एग्जांपल दी जा सकती है जैसे आप बता रही हैं अभी, यानी कि जी दे जैसे। सकते हैं आप, बिकॉज उसमें ये था, फॉर एनीबडी जो फॉर पीपल जिनको नहीं पता, बेसिकली बांग्लादेश में ये हुआ है कि 1971 से ऑनवर्ड जितने भी वो लोग थे जिन्होंने 1971 में जो लड़े थे, ठीक है, आर्मी के लोग, उनके बच्चों को कोटे दिए जाते थे। ठीक है, 50%। ना सिर्फ उनको कॉलेजेस में कोटे दिए जाते थे, बल्कि उनको जॉब्स में कोटे दिए जाते थे। 50% जॉब्स उनके लिए रिजर्व रखी जाती थी। 2018 में ये रूल खत्म हुआ था, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। फिर भी गवर्नमेंट के अंडर जो है ये काम हो रहा था, उनको एज इट इज कोटा दिया जा रहा था। ठीक है, और उनको जॉब्स मिल रही थी 50%। सो इट बिल्ट अ रिजेंटमेंट इन द हार्ट्स ऑफ यूथ। ठीक है, यूथ सबसे बड़ी, ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, इन एनी सिविल वॉर, यूथ जो होती है ना, दे आर द मेन, क्या कहते हैं, एक्टर। उनके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड हुई और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। ठीक है, और अब वी ऑल नो कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना वाजिद, यस, सो वो अब भाग के इंडिया जा चुकी हैं। सो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस। यस यू आर राइट। ओके, सो एज यू सी के इनइक्वालिटी का कितना एक्सट्रीम जो है ना एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ कंट्री। सो इसलिए SDG 10 इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड इसलिए SDG 10 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बिकॉज अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे है, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, इन इनइक्वालिटीज़ को ब्रिज नहीं किया जा रहा, तो फिर इट विल रिजल्ट इन बिगर एंड फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और फिर उसमें बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे। सो थैंक यू सो मच for attending this session. I enjoyed listening to your comments. Thank you so much. आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ लें काइंडली। Thank you, Bushra. Thank you so much, ma'am, for sharing your expertise with us today. Thank you. Ji, sure, Bushra. I will provide my LinkedIn with you. Wait a minute. I'll provide my link.
I'll provide it to Team Burak and they can share it. अगर कोई group है तो. यस मैम, देयर इज अ ग्रुप, आप शेयर कर दें, आगे इन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. जी okay. Thank you so much. अगर आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैम हम मीटिंग एंड कर लें. जी ज़रूर. ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और इतने अच्छे से हमें समझाया. वी हैड लर्नड अ लॉट टुडे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Thank you for inviting me. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.